Hello, good evening. ગુડ ઇવનિંગ. કેમ છો? ઓલવેઝ ફાઇન. Happy Friendship Day. હેપી ફ્રેન્ડશિપ ડે. હેપી ફ્રેન્ડશિપ Avni ડે મેમ. ma'am, Happy Friendship Day. હેપી ફ્રેન્ડશિપ ડે. મજામાં? Yes, yes, you are looking so beautiful. Looking very different, very graceful. મને લાગે છે બે બ્યુટિશિયન. Yes, 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 why not? Always આવા જ રહેવાનું છે, right? રાઈટ. તમારા લીધે એટલે આજે તમારા લીધે જ. જોઈન થઈ ગઈ. ચાર્જિંગ માટે જોઈન થઈ છું, બેટરી ચાર્જિંગ કરવા માટે. હા, ના જરૂર છે. હિપ્નો હિલિંગ કરતા જ રહેવું જોઈએ બીકોઝ શું થાય કે અત્યાર સુધીના એટલા બધા લેયર્સ ચડી ગયા છે ને કે હા એને ઉતારવા માટે એટલા વર્ષો લાગે, પણ ધીસ આર ધ સમ મેથડ્સ વેર વી કેન easily come out from all these traumas and all that, right? So આજનું સેશન બહુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે જે લોકોને આ વસ્તુ સમજાય અને જોઈન થશે આપણી સાથે તો એ લોકોને બધાને બેનિફિટ મળશે. મેં તમારા ગ્રુપમાં જોઈન મૂકી રાખ્યું છે. જે મારું ગ્રુપ છે ને એમ્પાવર વિસ્તાર યુવિનમાં, એમાં બધી મૂકી છે, બધું નાખ્યું છે. અને મેં કહ્યું છે એમાં કે હું જોઈન થવાની છું, તમે લોકો જોઈન થઈ શકો છો. Yes, many people તો joined જોઈએ with કોણ us, આવે છે. but હા I request all of you, please open your camera. Who's there? Vishnu Prajapati ji, please open your camera, sir. મારા મેકઓવરના હકદાર મેમ છે. હા? મારા મેકઓવરના હકદાર મેમ છે. ના ના, બધું તમે જાતે જ કરી રહ્યા છો. મારું તો હું તો ખાલી માધ્યમ બનું છું. તમારી પાસે બધું જ છે, રાઈટ? બસ તમારે ખાલી એને બહાર કાઢવાનું છે. તો આ ફ્રી સેશન જ્યારે પણ હોય ને ત્યારે ઓલવેઝ તમારે તમારા ફ્રેન્ડ્સ રિલેટિવ્સ ને બધાને ઇન્વાઇટ કરવા હોય ને તો કરી દેવાના. સો એ લોકોને એટલીસ્ટ આ વસ્તુથી એ લોકો નોલેજ લેતા થાય, રાઈટ? ફ્રી સેશનમાં કોઈ પણ જોઈન કરી શકે છે. ઓકે, સો સ્ટાર્ટ કરીએ. હજી 5-1 મિનિટ આપણે બધાની રાહ જોઈએ. તો શેર કરો તમે શું શું કર્યું અત્યાર સુધીમાં, તમારું અપડેટ. ઘણા દિવસથી ક્લાસમાં અત્યાર નથી આવ્યા. હા, ક્લાસમાં એમાંથી મારા દિયરનો એક્સિડન્ટ થયો છે. અચ્છા. એટલે બોલેરો વાળાએ ઉડાડી દીધા, આખું બોડી પાર્ટ નીકળી ગયો એક બાજુ. ઓહો માય ગોડ. સિમ્સમાં એડમિટ કર્યા હતા. પ્રમ દિવસે રજા આપી એ લોકો. ઓકે ઓકે, તો કઈ કર્યું કે પછી હજી બધા કઈ જ નથી કર્યું? તો આગળ કઈ કર્યું કોર્સમાં કે પછી હજી કઈ નથી કર્યું? ના, હજુ સલૂન કાલે હજુ કઈ જ નથી કર્યું. એમને આમ બધું પેન્ડિંગ પડ્યું છે. ઓકે ઓકે, કઈ વાંધો નહીં, હવે કરજો. કે હા, રોજ 20-25 જણા અહીંયા મારા ઘરે, અને ટિફિન ને આ બધા ને સલૂન જ હજુ કાલે જઈશ. અચ્છા, ઓકે, રાઈટ. કઈ વાંધો નહીં, કઈ વાંધો નહીં, આવે. સમટાઈમ્સ યુનિવર્સ આપણા પણ ટેસ્ટ લે. એટલે આપણે સરસ રીતે શું એટલે મન કહેવાય અહીંયા એવું. હોય ને. હા. હા, યસ, એક્ઝેક્ટલી. ઓકે, સો જલ્પા એની મિરેકલ્સ કે ભાઈ અત્યાર સુધીમાં કોઈ એવું ખાસ તને રિઝલ્ટ મળ્યું હોય કોઈ પ્રોસેસ કરીને, અથવા તો માઇન્ડસેટ હજી વધારે ડેવલપ થયું હોય એવું કઈ? માઇન્ડસેટ તો ચેન્જ થયું છે. એટલે તો ફરી જોઈન થવા મન થઈ ગયું છે. વચ્ચે થોડું ડિસ્ટર્બ થઈ ગયું હતું બધું. કે એ લોકો કન્ટિન્યુ કરતા ના હોય ને આપણે, થોડું યસ, ડિસ્ટર્બ થઈ જાય. જે પાછું ફરી આવી જાય છે બધું. રાઈટ. ધીસ ઇઝ લાઈફ, એટલે રાઈટ? તો હા લાઈફની અંદર અગર જો સીધે સીધું આપણે જેવું ઈચ્છીએ છે ને એવું જ બધું ચાલતું રહે ને તો આપણને મજા ના આવે ખરેખર જોવા જઈએ ને તો. સાચી બીકોઝ વાત. આપણે 6 પિલર્સમાં જે શીખ્યા હતા કે ઓલવેઝ ફ્લેક્સિબલ રહેવાનું છે, અને મેઇન વસ્તુ એ છે કે આપણને બધાને ન્યૂનેસ ગમે છે, રાઈટ? ન્યૂનેસ વગર આપણે જીવી જ નથી શકતા.
સો લાઈફની અંદર અપડાઉન આવશે તો જ આપણને બી મજા આવશે અને તો જ આપણા બી લર્નિંગ વધશે, આપણા એક્સપિરિયન્સીસ વધશે. બધું આપણે ઈચ્છીએ એવું થતું હોય તો પછી બધા ધીરુભાઈ અંબાણી બની જાય, બધા મુકેશ અંબાણી બની જાય, સાચી વાત છે. બધા ટાટા બની જાય, બિરલા બની જાય, રાઈટ? પણ એવું નથી થતું. We know that. સો આપણે આપણી બેસ્ટ પોટેન્શિયલ ઉપર કામ કરવાનું, આપણી બેસ્ટ ક્ષમતા પર આપણે કામ કરવાનું કે જેનાથી આપણે શું કહેવાય કે ડે બાય ડેની લાઈફમાં એટલીસ્ટ આપણે આપણી સેલ્ફને ખુશ રાખી શકીએ કોઈ પણ સિચ્યુએશનમાં, રાઈટ? એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માટે. તો 2-5 મિનિટ આપણે રાહ જોઈએ, પછી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ બધું. સો અત્યારે શું પ્રેક્ટિસમાં શું કરી રહ્યા છો? EFT, હોપોનોપોનો, અફર્મેશન શું કરી રહ્યા છો? કોઈ વખત EFT કરી દઉં છું. મારે પેલું રેકોર્ડિંગ કરીને બધું મૂક્યું છે ને મારામાં, બધું મારા જ વોઇસ થી બધું રેકોર્ડિંગ છે. તમારે પેલા કહેતા હતા ને કે મની અફર્મેશન થી માંડીને બધું જ સેલ્ફ માટે, બિઝનેસ માટે, રિલેશનશિપ માટે, એ બધું જ રેકોર્ડિંગ છે મારા વોઇસમાં, એટલે એ હું જાતે કરી લઉં છું. સરસ, વેરી નાઇસ, વેરી હા, નાઇસ. પણ એ વીકમાં 1-2 વખત, એવું કઈ કન્ટિન્યુઅસ થતું નથી. હજી તમે જે જગ્યા પર છો ને તેનાથી 10x ગ્રોથ કરવો હોય ને તો સ્ટીલ હું એવું કહીશ કે બહારની દુનિયામાં કામ કરવાનું બંધ કરી દો, અંદર કામ કરો. સી આળસ આવી બહાર, જાય છે મેમ. હા, આળસ આવી જાય છે. આળસ આવી જાય છે. ઓકે. आलस बुरी बला है, आलस भी बुरी बला है, वो निकलती नहीं. Vishnu sir and Vaibhav sir, can you please open your camera and join us so we can start our session? Thank you sir, welcome, happy friendship day. आप म्यूट है सर. Okay sir, no problem. सर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? 1-2 मिनट है अभी हमारे पास, तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आपके एक्सपीरियंसेस, अभी आपकी लाइफ कैसे चल रही है, क्या चल रहा है? किस तरह का मैम? अभी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस हो रहा है तो वो बता सकते हैं, माइंडसेट चेंज हो रहा है तो वो बता सकते हैं, आपके प्रोग्रेसेस शेयर कर सकते हैं. मैम अभी तो ऐसा है कि मतलब हर दिन बहुत बेहतरीन बीतता है. मतलब अब ऐसा होता है कि हर अच्छी चीजें अपने आप कनेक्ट होते जाती हैं. और जो आपने बोला था ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए, वो तो एकदम जादू की तरह काम करता है. क्या बात है, क्या मतलब मिरेकल क्या हुआ वो बताइए, इन लोगों के साथ वो शेयर कीजिए. लिखने से क्या आपको बेनिफिट मिला, क्यों आप लिख रहे हैं ग्रेटिट्यूड अभी भी? मैम ऐसा लगता है कि ये जो यूनिवर्सल एनर्जी है उससे कनेक्ट हो जाते हैं, और बहुत कुछ अपने फीलिंग के ऊपर, इमोशन के ऊपर डिपेंड करता है. तो जैसे ही वो लिखते हैं तो फीलिंग और इमोशन बहुत ऊपर होता है, और उसकी वजह से वाइब्रेशन ऊपर होता है. तो जैसे ही अपना कॉन्शियस लेवल ऊपर होता है, वाइब्रेशन ऊपर होने की वजह से, तो जिस लेवल पे होते हैं वो चीजें अपने आप कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं. तो जैसे पहले मेरे को लगता था कि मेरे को बहुत मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है,
फिर आपने बताया कि मेहनत जैसा कुछ चीज नहीं होता है, बहुत इजीली चीजों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो अगर आप अपना कॉन्शियस लेवल ऊपर उठाते हो तो। यस। अभी वो ट्रू। सारी चीजें होती जा रही हैं। मैं पहले मतलब 8 8 10 10 घंटे ग्राउंड में रहता था। हम्म। अभी 4 घंटे रहता हूँ और उसमें मैं 40 50 हजार रुपए भी अर्न कर रहा हूँ और अपनी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा समय अब खुद के अंदर काम करता हूँ, वहां जाके ग्राउंड में काम करने की बजाय। और अब ऐसा होता है कि लगता है कि नहीं, ग्राउंड में जाके क्यों काम करना। अगर मैम, एक चीज समझ में आया कि सब कुछ अपने अंदर है और हम बाहर ढूंढ रहे थे। राइट। जैसा कि आप बताती थी कि बस खुद को स्थिर कर लो, खुद को शांत कर लो। क्योंकि जैसे पानी अगर हिलता हुआ रहेगा तो हम अंदर की चीज नहीं देख पाते हैं। तो अगर मन में उथल पुथल है तो वो आइडियाज नहीं आते। तो एग्जैक्टली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं फील करता हूँ। लेकिन हाँ, कोई एक बात चीज नहीं। है कि अब जीने लगा हूँ, अब मजा आता है। अब कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती, मैं इतना स्टेबल हो चुका हूँ। लाइफ में राइट। कुछ भी आए, लाइफ कुछ भी मेरी तरफ फेंकती है, तो मेरे को लगता है कि ये चीज मेरे को। चलिए, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट यू सर कि आप जो भी बताना चाहते हैं, तो ये हमारे सारे मास्टर कोर्स के पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो लोग तो ऑलरेडी बहुत कुछ समझते हैं, जानते हैं, पर फिर भी शेयरिंग करने का मतलब ये होता है कि शायद कहीं कुछ मिसिंग है तो हम वापस से रिकनेक्ट कर सके। तो आपने बहुत अच्छा शेयरिंग किया कि जब हमें, क्योंकि ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होती है। आप भी काफी समय से जुड़े हैं सर मेरे साथ, और ये लोग भी काफी समय से जुड़े हैं। तो सब में धीरे धीरे अपने आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है लाइफ का, वैसे वैसे हम में समझ बढ़ती जाती है, और फिर धीरे धीरे हम स्टेबल होना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पहले तो माइंड खुद समझता नहीं है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इतने सालों तक हमने जो दिया है, जो इतना भरा पड़ा है हमारे सबकॉन्शियस में, तो वो अचानक से कोई भी चीजें जाने लगेगी ना, तो वो पहले तो उसको डिनाई करेगा, रेजिस्ट करेगा। अरे भाई, ये क्या आने लगा मेरे साथ, आजकल कुछ नया नया आ रहा है। तो माइंड समझ नहीं पाता है कि किस तरह से करना। लेकिन आप लोग जिस तरह से मेरे साथ जुड़े हैं, जुड़े रहे हैं, तो बस मैं यही कहूंगी कि बहुत बहुत अच्छा सभी लोग कर रहे हैं, और मैं सभी लोगों के ऊपर बहुत प्राउड करती हूँ। चलिए, फिर से एक बार थोड़ा सा हम लोग अगर अ, जो लर्निंग्स आप लोगों ने ली है उससे फिर से दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हम हमारे अंदर बहुत कुछ आज के दिन में भी पास्ट भरा पड़ा है, राइट। ये जो रेड मैंने दिखाया है राइट। ट्रायंगल, तो वो हमारा पास्ट आज में प्रेजेंट में है। और प्रेजेंट के अंदर हम पास्ट को लेके जी रहे हैं। तो कल हमारा कैसा होगा, वो ही सेम रिपीट हमारी कल भी होगी, राइट। जो हम अभी समझ चुके हैं कि अगर फ्यूचर अच्छा बनाना है, जिंदगी अच्छी तरीके से जीनी है, हमारी जो डिजायर है, हमारी जो विशेस है, हमारे जो गोल है, उसके अकॉर्डिंग अगर हमें लाइफ में जीना है, तो हमें कहाँ बदलना होगा, ये चीजें यहाँ बदलनी होगी, तब जाके ये चीजें हमारी बदलेगी। वरना तो कब ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे और इसी तरह 2x लाइफ जीते रहेंगे, हमें खुद को नहीं पता है। फ्रेंड्स, अभी मैं इतना बोलना चाहूंगी आप लोगों को कि अभी बराबर से 1 घंटा मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि ये वापस से आपको अगर कहीं पे कुछ मिसिंग है, तो वो आपको आज समझ में आएगा कि मेरे अंदर अभी भी क्या मिसिंग है, तो आप उसे इजीली दूर कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए बने रहिएगा, क्योंकि हिप्नो हीलिंग करने से पहले थोड़ा सा हम अपने माइंड को, जैसे एक्टिवा को राउज करते हैं, फोर व्हीलर को राउज करते हैं, वैसे अपने माइंड को अभी राउज कर रहे हैं। तो यहां से जाइएगा मत, यहाँ पे रहिए और पूरे फोकस के साथ रहिए, राइट।
अब हमारे अंदर ये सब कुछ चलता है, पास्ट का प्रेजेंट में चल रहा है, उसी से हमारा फ्यूचर बन रहा है। मतलब क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं आज में, लेकिन बहुत सारा बर्डन पास का लेके जी रहे हैं। तो हमारी मेमोरीज जो होती है फ्रेंड्स, उसमें से हमारी स्टोरीज क्रिएट होती है। मैं ये थी, मैं वो थी, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है। ये सारी स्टोरी चलती रहती है। लोग मुझे चीट करते हैं, मुझे आता नहीं है, मैं कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आता है, और उससे एनर्जी क्रिएट होती है फ्रेंड्स। एनर्जी कैसी क्रिएट होगी, अगर मैं दिन के 10 घंटे नेगेटिव सोच को लेके चलती हूं तो मेरी एनर्जी कैसे क्रिएट होगी, कैसी क्रिएट होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव क्रिएट होगी। तो फिर उसमें से मेरी पर्सनालिटी कैसी बनेगी? क्या वो पर्सनालिटी दमदार होगी? क्या वो पर्सनालिटी किसी को अट्रैक्ट कर पाएंगी, मनी को अट्रैक्ट कर पाएगी, नई नई पॉसिबिलिटीज को अट्रैक्ट कर पाएगी? तो ये बेस है हमारा, कि जो ऑलरेडी मेमोरी में पड़ा है उससे हमें बहुत अच्छे से, आज भी आप कुछ ऐसी हीलिंग में प्रोसेस करेंगे जिससे ये जो पुरानी मेमोरी चाइल्डहुड के टाइम की आपके अंदर जो भरी पड़ी है ना, उसको हम धीरे धीरे करके ना दूर करेंगे। पहले भी मैंने काफी टाइम करवाया है ये वाली एक्सरसाइज, इनर चाइल्ड हीलिंग। लेकिन बार बार करने से ये होता है कि कहीं अगर कुछ बच गया है, नहीं निकला है, तो आज फिर से हम उसे निकाल देंगे। अब उसके साथ कनेक्ट होंगे, और फ्यूचर जो है उसको हम, आज में जीना है फ्यूचर को। कैसे? जैसे मुझे अगर सेलिब्रिटी कोच बनना है तो आज मैं अपने आप को बताऊंगी कि यस, राइट नाउ आई एम अ सेलिब्रिटी कोच। अगर जलपा जी को जैसे एक शॉप ओनर बनना है, गारमेंट के बिजनेस में शॉप ओनर बनना है, राइट, तो वो आज सोचेगी कि मैं हूं। और पास्ट को जाके ना हम चेंज करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल सकता है। कहाँ चेंज करना है? हमारी बिलीफ चेंज करनी है, पास्ट की हमारी सेल्फ इमेजेस चेंज करनी है। यहाँ पे प्रेजेंट में हमें कंफ्यूज जरा भी नहीं होना है। प्रेजेंट में हमें ये नहीं सोचना है कि फ्यूचर में मैं इस तरफ जाऊं कि इस तरफ जाऊं। वो कंफ्यूजन आज अभी से अगर है थोड़ी सी भी आपके अंदर, तो बिल्कुल उसे छोड़ दीजिए। क्रिस्टल क्लियर हो जाइए, मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए। और अभी संकल्प कर दीजिए कि प्रभु, मेरे लिए जो सही है, मेरे लिए जो लिखा है, वो मुझे मिल रहा है। और यूनिवर्स में अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। आपके लिए जो भी बेस्ट होगा प्रभु आपको दे देगा। हमें एक्शन देने पे काम करना है। हमारी सोच में नेक्स्ट लेवल का एक्शन होना चाहिए, ना ही के शंका होनी चाहिए, ना ही के डिस्ट्रस्ट होना चाहिए खुद के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, या किसी भी चीज के ऊपर। हमें कभी भी किसी भी चीज के ऊपर डाउट नहीं करना है फ्रेंड्स। कभी हमें अपने आप को छोटा नहीं समझना है, क्योंकि अगर हम फिक्स माइंडसेट से चलेंगे, पास्ट में हम ऐसे ही करते थे कि मेरे में टैलेंट नहीं है, मैं इतनी होशियार नहीं हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं पहली बार मैंने जब किया था तब मैं फेल हो गई थी, मैंने दूसरी बार एक्शन लिया था तो भी मुझे नहीं आया था, बहुत सारी चैलेंजेस है, मेरे घर में ये चल रहा है, मेरे बच्चे ऐसे, मेरे हस्बैंड ऐसे, मेरे इन लॉज ऐसे हैं, पता नहीं क्या क्या हम सोचते रहते हैं और गिव अप कर देते हैं इजीली। चलो ठीक है, अभी तो क्या है कि जैसे अभी बारिश है तो अभी मैं बहुत कुछ कर नहीं सकती हूँ, या फिर दिवाली आएगी तो ये सोचोगे कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है ना, तो अभी मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसे जब हम हमारे माइंड के साथ बात करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा फिक्स माइंडसेट जो होता है कि मैं इतना ही कर सकती हूँ, तो फिर धीरे 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 हम ग्रोथ करने की बजाय धीरे धीरे अपना लेवल और नीचे कर जाता है, करते जाते हैं। अगर ग्रोथ माइंडसेट से हम काम करते हैं, तो अगर हमारे अंदर स्किल नहीं है तो तुरंत हम सोचेंगे, अरे मैं कुछ भी चीज सीख लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक मैंने सीखा है, ये भी मैं सीख लूंगी।
दूसरा, कोई भी चैलेंजेस आएंगी तो हम गिव अप नहीं करेंगे। हम क्या, अरे ये चैलेंजेस आई है, इसमें भी मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मैं कैसे ग्रो कर सकती हूँ। ठीक है, आज मेरे पास एक एक घंटा है, मैं 1 घंटे में मेरा काम करूंगी। ठीक है, आज मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है, 20 मिनट में मैं अफर्मेशन तो कर ही लूंगी, 20 मिनट में मैं ग्रेटिट्यूड तो कर ही लूंगी। ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन हमेशा अपने ऊपर काम पहले करेगा। बाहर की दुनिया में काम करने की बजाय जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो चीजें वैसे ही हमारे अकॉर्डिंग होती जाती हैं। हर बार जब भी हम कोई भी कोशिश करते हैं तो कभी भी हम फेलियर नहीं होते हैं। हमने सीख लिया लॉ ऑफ मैग्नेट विद इन में कि साइंस ऑफ माइंड ये कहता है कि जब भी हम कोशिश करते हैं, हम कोई भी एक्शन लेते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट होता है और फीडबैक होता है। कभी भी हम फेलियर होते ही नहीं है। तो ये चीज हमेशा हमें याद रखनी है। दूसरों की सक्सेस से, हमारे फील्ड में या दूसरों के फील्ड में जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनसे हमेशा हमें इंस्पिरेशन लेनी है, हमें इंस्पायर होना है उनसे। राइट। स्कैरसिटी, भय वाला माइंडसेट नहीं रखना है, डरावना नहीं रहना है। हमें हमें ये हमारे माइंड को नहीं बताना है कि मैं इनफ नहीं हूं, मेरे पास पैसे इनफ नहीं है, अपॉर्चुनिटी इनफ नहीं है, या मैं सक्सेस नहीं हो सकती हूँ, या मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। या फिर दूसरे हो जाते हैं तो हम कभी कभी ये सोचते हैं फ्रेंड्स कि अरे उसके पास तो बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा टाइम है, ये तो ये भी कर सकती है ना, वो भी कर सकती है ना। तो हमें इस तरह से कभी भी हमारी सोच को नहीं रखना है। हमें अबंडंट माइंडसेट से सोचना है कि अगर लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है तो यूनिवर्स मुझे भी अपॉर्चुनिटीज हर रोज दे रहा है। और हमें ज्यादा से ज्यादा लर्निंग एंड सेल्फ ग्रोथ में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो चीजें हमें 10x लेवल तक लेके जाएगी। हमें दूसरों के साथ कोलैबोरेशन करके आगे बढ़ना है। हम अकेले जीने के लिए नहीं आए हैं, हम दूसरों का साथ देने और दूसरों को साथ देने के लिए यहाँ पे आए हैं फ्रेंड्स। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। और 10x मनी कॉन्शियसनेस के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट में रहना है। अगर हमने पुरानी हमारी आइडेंटिटी बदल दी, हमारी बिलीफ्स बदल दी, हमने माइंड को रीवायर करना सीख लिया, पास्ट में जाके ना हमने सब देख लिया कि मेरी कौन कौन सी ऐसी बिलीफ है जो मुझे आज भी रोक रही है, चलो डिलीट डिलीट निकालो। ऐसी जो प्रोसेस मैंने बताई हुई है वो लोग अगर आप करते हैं तो आप 10x बिजनेस सीईओ बनने के लिए परफेक्ट रेडी है। क्योंकि आपने सीखा है कि 10x मनी कॉन्शियसनेस कैसे रखनी है। तो 10x मनी कॉन्शियसनेस कैसे रखेंगे फ्रेंड्स? आज में जीना है, ना ही हमें पास्ट में जीना है, ना ही हमें फ्यूचर में जीना है। हमें बराबर आज में जीना। आज मेरे पास क्या है, आज मैं क्या कर सकती हूँ, आज मैं कौन सा एक्शन ले रही हूँ। और जब तक हम अपने लिए सुबह के टाइम में या तो ब्रह्म मुहूर्त में या तो उठने के बाद तुरंत जैसे ही हम अपने लिए ½ दे देते हैं, ग्रेटिट्यूड लिखना, फॉरगिवनेस करना, विजुअलाइजेशन करना और अपने डे डिजाइन करना, ये सारी चीजें जब जब हम करते जाएंगे ना, तब तब हमारा ग्रोथ होना पक्का है। पास्ट की कोई भी चीजें आती है तो उसको इजीली अब हम निकाल सकते हैं। तो तब जाके हम कंप्लेन करने की जगह पर क्रिएटिव वाले मोड में इजीली हम लोग आ जाएंगे। हम ज्यादा स्क्रॉल नहीं करेंगे सोशल मीडिया पे, या ज्यादा नेटफ्लिक्स नहीं देखेंगे। हम जो है अपने नॉलेज बढ़ाने वाली एक्टिविटी ज्यादा करेंगे, इंफॉर्मेशन में स्टक नहीं हो जाएंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो क्या करेंगे, हमें जितनी यूज करनी है उतनी ही हम यूज करेंगे, उतने ही कंटेंट देखेंगे। तो ये सारी चीजें हमें करनी है। अब हम चलते हैं, आज का जो हमारा सेशन हमने डिजाइन किया हुआ है स्पेशली, तो उसकी ओर चलेंगे। तो आज सेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को पूछना चाहूंगी कि सबसे पहले मुझे ये बताइए
आप लोगों ने पूरी जिंदगी, अभी तक जो भी आपकी एज है, पूरी जिंदगी आप लोगों ने सबका साथ दिया, लेकिन जब खुद की बारी आई, तब क्या आपने खुद का साथ दिया या खुद को पीछे रख दिया? क्या किया? पीछे रख दिया। तो सब सबका सोचते हैं पहले, बाद एग्जैक्ट। में अपना मैं सोचते हैं, इसलिए। आपसे मिलने से पहले मैं ऐसा ही था कि मतलब खड़े रहते थे, पर अभी ऐसा है कि इतना समझ में आ गया है कि अगर मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो ही मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने आप को बढ़िया रखना है। जी बिल्कुल। अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर बहुत कुछ दबा कर बैठे हैं? मैं 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 बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा अभी दिख रहा हूँ आपको, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। पहले बहुत कुछ था, पर अभी कुछ भी नहीं है वैसा। बहुत बढ़िया। अब आज का सेशन जो मैंने स्पेशली डिजाइन करा है वो किसी और के लिए नहीं, हमें खुद से दोस्ती करनी है। आज फ्रेंडशिप डे है, दिस इज अ सिंबॉलिक फ्रेंडशिप डे, लेकिन हमें पूरी जिंदगी खुद के साथ पहले दोस्ती करनी है। हम खुद के जबरदस्त फ्रेंड होने चाहिए, राइट? तो आज का सेशन स्पेशली मैंने उसी के लिए डिजाइन किया है कि हम लोग खुद के फ्रेंड्स कैसे बने, राइट? चलिए, तो अभी हम सेशन शुरू करते हैं। अ, आप लोगों को पानी वानी पीना है तो पी लीजिए। ओके, बॉटल ले आओ। चलिए। अपने दोनों पैर एक जमीन के सेकंड। ऊपर रखना मेरे है, आराम से बैठना है। हाँ हाँ, जाके आइए, कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को अभी पता ही नहीं कि हीलिंग का मतलब क्या है। हीलिंग का मतलब कोई मोटिवेशनल स्पीच या सेशन नहीं होता है। हीलिंग का मतलब होता है कि जिस दर्द को हमने सालों से अंदर दबा के रखा है, उसकी जड़ तक पहुंचना। क्योंकि जब तक हमारे शरीर में इमोशन अगर कहीं पे भी भरी पड़ी है या बार बार वो रिफ्लेक्ट कर रही है हमारे माइंड में, तब तक हम अपने ग्रोथ को रोक के रखते हैं। तो आज का सेशन आप लोगों की लाइफ में भी ऐसा रहेगा कि हम फ्रेंडशिप डे मतलब कोई एक दिन का नहीं है, हमें खुद से दोस्ती हमेशा रखनी है। जब तक हम जिएंगे तब तक हम खुद के साथ दोस्ती रखेंगे। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होता है वो माइंड के कौन से लेवल पर होता है? सबकॉन्शियस लेवल पर ये होता है, राइट? सबको सबकॉन्शियस। हिप्नो हीलिंग मतलब सबकॉन्शियस में जाके ना प्रोग्रामिंग करना। तो आज हम वही करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करेंगे। चलिए, अभी आपके दोनों पैर जमीन पर रख दीजिए और हथेलियां जैसे हम ऐसे खुली रखते हैं वैसे ही रखनी है। आप
ये मुद्रा तो में भी बैठ सकते हैं। तो मेडिटेशन वाली मुद्रा में भी अगर आप चाहे तो बैठ सकते हैं। और आंखें बंद रखनी है, जब तक मैं ना कहूँ आंखें नहीं खोलेंगे बीच में। चलिए, अभी डीप ब्रीथ करना है आपको। टेक अ डीप ब्रीथ इन है, लंबी और गहरी सांस लेनी है। लंबी और गहरी सांस लेके धीरे से छोड़ना है, और देखना है कि आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है और आपका माइंड धीरे धीरे शांत हो जा रहा है। नो थॉट वाली आपकी पोजीशन आ रही है। एक बार और फिर से गहरी सांस लेंगे, नाक से लेंगे और मुंह से निकाल देंगे, और पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। अब इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आपके पैरों के तलवों के नीचे एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राइट लाइट जड़े की तरह निकल रही है। जैसे कोई पेड़ की जड़ें कैसे होती है, वैसे आपके पैरों के तलवे से जड़ें निकल रही है, ब्यूटीफुल लाइट की तरह। और वो आपके टाइल्स से होकर, नीचे जमीन से होकर, पानी सबके नीचे से जाकर ने धरती माँ में वो चली गई है। वो जड़ें अब धरती माँ में चली गई हैं, और धरती माँ आपको पूरी तरह से सुरक्षित कर रही है। वो आपकी जड़ें धरती माँ में चली गई हैं। अब आप बहुत सुरक्षित फील कर रहे हैं अपने आप को। आपका मन बहुत शांत हो गया है। आपका हर डर, आपका हर तनाव, भारीपन अगर लग रहा है, वो धीरे धीरे जड़ों के माध्यम से मदर अर्थ में चला जा रहा है। और मदर अर्थ बहुत प्यार से अपने अंदर उसे ले रही है। बहुत कुछ निकल रहा है, देखिए आपके शरीर में से बहुत कुछ, जो भी नेगेटिविटी है, तनाव है, डर है, इमोशन, जहाँ पे नेगेटिव इमोशन भरी पड़ी है, वो सारी नेगेटिव इमोशंस पैरों के तलवों से जड़ें निकल रही है, उससे धीरे 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 धरती माँ में जा रही है। मदर अर्थ उसे बहुत प्यार से अपना रही है, बहुत प्यार से अपने भीतर वो ले रही है। और अब महसूस करना है आपको कि मदर अर्थ की शांत, स्थिर और हीलिंग एनर्जी, मदर अर्थ की हीलिंग एनर्जी वो ही जड़ों के माध्यम से आपके शरीर में ऊपर की ओर आ रही है, और वो और ब्राइट लाइट के माध्यम से आ रही है। देखिए आपके पैरों के तलवे से मदर अर्थ की एनर्जी, हीलिंग लाइट ऊपर आ रही है। आपके पैरों से होकर अब धीरे धीरे आपके शरीर में आगे बढ़ रही है, घुटनों में, कमर में, सीने में, कंधों में, गर्दन, चेहरे पर, और पूरे शरीर में फैल चुकी है वो हीलिंग लाइट। जहां जहां से अभी अभी नेगेटिविटी रिलीज हुई है, वो सारी जगह भर रही है, वो सारी जगह भर रही है। और आप पूरी तरह से सुरक्षित है, स्थिर है, शांत है। अब आपकी सारी इमोशंस जो है वो सेटल हो रही है। और अब विजुलाइज कीजिए आपके सिर के ऊपर से एक वाइट ब्राइट लाइट, ब्रह्मांड से एक वाइट ब्राइट लाइट आपके शरीर में आ रही है, जो सबसे पहले आपका क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र, जिसमें ज्ञान, शांति और
दिव्य ऊर्जा भरी है, वो पूरी तरह संतुलित है। ये सब कुछ आपके अंदर में क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र से आ रहा है। वो धीरे धीरे अब थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र, आपकी इंट्यूशन पावर, क्लैरिटी, ट्रस्ट, सब बढ़ता जा रहा है। आप ज्यादा अवेयर होके जी रहे हैं। देखिए, फोकस कीजिए थर्ड आई चक्र पे। नाउ ये लाइट आगे बढ़ते हुए विशुद्ध चक्र, यानी कि थ्रॉट चक्र, ब्लू लाइट आपके विशुद्ध चक्र को एक्टिवेट कर रही है। अब आप अपने मन की बात प्रेम और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहे हैं। आप एक पावरफुल लीडर हैं। आप अपनी बात बहुत क्लैरिटी के साथ, प्रेम और कॉन्फिडेंस के साथ सबको कर रहे हैं। अब ये ब्राइट लाइट और आगे बढ़ रही है अनाहत चक्र, यानी कि हार्ट चक्र। अपने हार्ट में ग्रीन कलर की लाइट को महसूस करें। आपका अभी तक का जो भी पेन था, जो भी डिस्कम्फर्ट था, किसी से नाराजगी थी, किसी को हर्ट हुआ था, आपको हर्ट हुआ था, किसी के से कुछ कहा सुनी हो गई थी, सब कुछ अब धीरे धीरे ये वाइट ब्राइट लाइट में पिघल रहा है। और उसकी जगह आपके दिल में प्यार, क्षमा, काइंडनेस और अपनापन भर रहा है। देखिए, बहुत ज्यादा प्यार आप में बढ़ रहा है। आप बहुत काइंड हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं सोलार प्लेक्सिस की ओर। मणिपुर चक्र, कॉन्फिडेंस, और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। आप में दिन ब दिन साहस बढ़ता जा रहा है। आपका डिसीजन पावर बहुत बढ़ चुका है। आप बहुत डिसिसिव हो चुके हैं। उसके नीचे, बराबर नाभि के नीचे, सैक्रल चक्र, यानी स्वादिष्ठान चक्र, ऑरेंज कलर, 6 पंखड़ियों वाला फूल अपनी फुल ऊर्जा के साथ वहां पे घूम रहा है। बहुत खुशी हो रही है, हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ रही है, इमोशन सारी बैलेंस हो रही है आपकी। और वो 6 पंखड़ियों वाला फूल बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है। अब आगे चलते हैं मूलाधार चक्र, रूट चक्र, रेड कलर, 4 पंखड़ियों वाला फूल जो आपको लाइफ में पूरी तरह से सिक्योरिटी देता है, बैलेंस करता है, स्थिरता देता है, विश्वास बढ़ाता है।
अब आपके भीतर पूरी तरह से वो स्थापित हो चुका है। पूरा शरीर, बॉडी, माइंड, सब कुछ बैलेंस हो चुका है, एनर्जी से भर गया है, और आप पूरी तरह से शांत और स्वस्थ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अब सारे चक्रास एक्टिवेट करने के बाद अब आपको देखना है आपने सामने अपने बचपन वाले सेल्फ को। शायद ये आपका सेल्फ 5 साल का हो सकता है, 7 साल का, या 10 साल का हो सकता है। देखिए, ध्यान से उसके चेहरे को देखिए। ये आपका बचपन का सेल्फ क्या महसूस कर रहा है राइट नाउ? कैसा फील हो रहा है उसे? क्या वो डरा हुआ है, अकेला है, उदास है, किसी के प्यार का इंतजार कर रहा है? देखिए, वो आपका बचपन का सेल्फ क्या फील कर रहा है। अब जाइए, धीरे धीरे उसके पास जाइए, उसका हाथ पकड़ लीजिए और उसको प्यार से गले लगा लीजिए। और उससे कहिए, अब मैं आज गई हूं, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब तुम सुरक्षित हो, सिक्योर हो, तुम बहुत प्यारे हो, तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो, इनफ हो, कंप्लीट हो, सिक्योर हो। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो। तुम जो भी हो पर्याप्त हो। और अब विजुलाइज कीजिए, आपके हृदय से एक गोल्डन लाइट निकल रही है और आपके इनर चाइल्ड को पूरी तरह से सर से लेके पैर तक उसको भर रही है। आपके दिल से गोल्डन लाइट निकल रही है और आपके बचपन के सेल्फ को पूरी तरह से वो लाइट से भर रही है। और उसके सारे आंसू धीरे धीरे अब मुस्कान में बदल रहे हैं। अब आपका इनर चाइल्ड भी मुस्कुरा रहा है और आपका हाथ पकड़कर आपके हृदय में समा रहा है। आज से आप कभी अकेले नहीं हैं। आपका इनर चाइल्ड आपके साथ सुरक्षित है, सिक्योर है, सेफ है, प्यार से भरा हुआ है। अब मन ही मन दोहराइए मेरे साथ, मैं खुद का सबसे अच्छा दोस्त हूं। मैं मैं खुद का खुद का सबसे अच्छा सबसे हूँ। अच्छा दोस्त हूँ। मैं खुद का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। मैं अपने आप में आपको पूरी तरह मैं प्रेम के योग्य हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं शांत हूँ। मैं मैं हर दिन बेहतर बन रही हूँ। मैं हर दिन बेहतर बन रही हूँ। आपके हर शब्द आपके अवचेतन मन में, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से स्थापित हो रहे हैं।
फिर से एक बार अपने माइंड में जोर से बोलना है, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड की एक एक कोशिकाएं सुन सके। मैं खुद का सबसे अच्छा फ्रेंड हूँ। मैं का सबसे अच्छा मैं फ्रेंड। खुद का अच्छा फ्रेंड हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। मैं अपने आप मैं को अपने पूरी आप तरह को पूरी स्वीकार तरह करती स्वीकार करती हूँ। मैं प्रेम के योग्य हूँ। हूँ। मैं प्रेम के मैं योग्य। प्रेम के योग्य हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत मैं शांत हूँ। मैं हर दिन बेहतर हो रही हूँ। हूँ। मैं हर मैं दिन हर बेहतर हो रही बेहतर हो रही हूँ। अब अपने दोनों हाथ अपने दिल पर रखकर महसूस कीजिए कि आपका इनर चाइल्ड अब बहुत सेफ है, इनफ है, और हर चीज के लिए योग्य है। पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा है। आपके लिए जो बेहतरीन चीजें ब्रह्मांड में हैं, सब आपके पास आ रही है। और आपका इनर चाइल्ड अब मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है। अब कोई डर नहीं है, कोई तनाव नहीं है, बस चारों ओर खुशियां हैं। और देखिए अपने आप को, जितने भी पैसे कमाने हैं, जितने भी सेविंग्स करना है, बहुत आसानी से सुरक्षित तरीके से आप कर रहे हैं। देखिए अपने आप को, इजीली मनी फ्लो हो रहा है, चारों दिशा से हो रहा है। क्योंकि जब आपने एक्सेप्ट किया आप खुद के बेस्ट फ्रेंड हैं, पैसा भी आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया। वो अब बार बार आता है, हर बार आता है, हर दिशा से आता है। आप काम करें तो भी आता है, काम ना करे तो भी आता है, रात में भी आता है, दिन में भी आता है। चौबीसों घंटे किसी न किसी माध्यम से पैसे आ रहे हैं। देखिए, आपको जितने चाहिए उससे कई गुना अधिक आ रहे हैं। जब आपको जरूरत होती है तब सबसे ज्यादा आ जाते हैं। देखिए अपने फ्यूचर सेल्फ को भी। आपका फ्यूचर सेल्फ कितना कॉन्फिडेंट है, कितना खुश है, कितना प्यार से भरा है। देखिए अपने आप को, आप एक ग्लैडिएटर है, आप एक लीडर है। अब धीरे से वापस हम डीप ब्रीथ करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेनी है और धीरे से छोड़ना है। धीरे धीरे अपने हाथ पैर की उंगलियां हिलाएंगे। महसूस कीजिए आप जिस जगह पे बैठे हैं वहां की ऊर्जा एकदम ब्राइट हो चुकी है। मैं 1 से 5 तक गिनती हूँ, आप पूरी तरह सजग हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। आप पूरी तरह सजग हो जाएंगे, बिल्कुल फ्रेश, तरोताजा। आप दोनों हाथ की उंगलियां एक साथ रब करेंगे जल्दी से।
और फिर अपने आंखों के ऊपर रख देंगे और पूरे चेहरे पे, हाथों पर, अपने दोनों हाथों पर लगा देंगे, अपनी पूरी कमर पर और पैरों पे लगा देंगे। पूरी ऊर्जा एक साथ अपने पूरे शरीर पे लगा देंगे और इस ऊर्जा को महसूस करें 2-5 मिनट के शरीर बहुत ही वाइब्रेंट ऊर्जा से भर गया है। माइंड बहुत शांत, बैलेंस हो चुका है। पूरे शरीर में नई ऊर्जा बह रही है। और अब धीरे से आंख खोलिए और बताइए मुझे कैसा महसूस हो रहा है ये हीलिंग करके आपको। बहुत बढ़िया। क्या फील हुआ जब आप હલકા इनर चाइल्ड से मिले कि आपने? હું મળી ऐसा होता है। वाह। तो क्या कर रहा था आपका इनर चाइल्ड? डरा हुआ था, रो रहा था, क्या कर रहा था? નીચે कैसे બોલ देखा? रही कैसे देखा आपके इनर चाइल्ड को? कैसे देखा आपने? थोड़ा डरा हुआ था, थोड़ा खुश था, अच्छा। छोटा छोटा। क्या बात है। बहुत बढ़िया। आपने जल्पा मैम? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, मैं अपने आप में खोई थी। अच्छा। सर आपने हाँ कुछ हाँ। देखा? हम जैसे पहले आपसे बोलता था ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर धीरे धीरे समझ में आता गया कि वो मतलब जो पहले चीजें मिसिंग थी वो अब दिखता है अच्छा, कि वेरी मतलब नाइस। सामने लोग अमीर हैं और हमारे पास उतना नहीं है। तो बचपन में ये दिखता था, तो अच्छा, अभी वो चीज दिखता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये चीजें हमें करते ही रहना है। एटलीस्ट साल में 2 से 3 बार तो ये करना ही करना है हमें, जब भी मौका मिले। तो जुड़िए सेशन में, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग आते हैं टाइम निकाल के और अपने आप में ये टाइम जो है वो इन्वेस्ट करते हैं बहुत अच्छे से। और बस मैं यही कहूंगी कि ऐसे ही हीलिंग सेशन के साथ अगर आगे और भी हीलिंग सेशन करने हैं तो जुड़े रहिए। रिलेशनशिप, मनी एंड हेल्थ के भी हीलिंग सेशन करती हूँ मैं। और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि सच में मेरे साथ जुड़े हुए फ्रेंड्स और लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, तो बस बताइए। राइट? ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और मिलते हैं थैंक यू फिर। मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू। सो मच मैम।